Okay, hi everyone. So we are seeing the 5 important topics daily series. Here we give you 5 important topics, and then along with that we give you questions. Right? Now, what I believe, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो उस टॉपिक को पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है. देयर इज नो रीजन टू रीड टॉपिक्स without solving in questions, right? So basically what we do, we give you 5 topics, then we give you some questions related to these 5 topics, right? तो आपका डेली बेसिस पे एक रेलेवेंट क्वेश्चंस का सेट बन रहा है, ठीक है? ये प्रैक्टिस चल रही है आपकी. एंड दीज करंट अफेयर टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सम आर हिडन का मतलब व्हाट डज इट मीन, दैट वेयर द यूपीएससी रीचेस एंड वी आर नॉट एबल टू. Okay, so I am analyzing the paper and believe me, I am telling you this again and again. जो एक kind of practice you need for this examination, Gold Tide is more than enough. Everything I have cracked, every corner I am trying to cover. Basics, if you just prepare your basics, basic economics, basics polity, geography, इसके बाद you really don't need anything. I'm telling you this with full responsibility. Okay, so try to cover these questions, very important. And whatever the questions I am giving you, 100% confidence आएगा एग्जाम के टाइम पे, राइट? कितना नंबर चाहिए? लेस देन लाइक काइंड ऑफ 50%, 47 46 क्वेश्चंस इफ यू एबल टू डू, आप ऑलमोस्ट यू आर क्वालिफाइंग द पेपर, राइट? इट्स फॉर द जनरल कैटेगरी. इफ यू आर अदर कैटेगरीज SC ST OBC तो और भी कम चाहिए. समझ में आ रहा है? सो if you see the today's topic, what I have tried to cover, I will try to cover five topics. The very first topic talks about the 9 programs announced by the finance minister in 25-26 budget. Okay, we have agriculture को उन्होंने फर्स्ट इंजन बताया, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो गया. और प्रीलिम्स में भी अगर आप ये 9 प्रोग्राम्स अभी आपको याद रहा एंड यू राइट इन योर मेंस एज वेल, तो दोनों का काम हो जाएगा. बट प्रीलिम्स के लिए व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्पेसिफिकली 9 प्रोग्राम्स दे हैव अनाउंस्ड, राइट? नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ 9 प्रोग्राम्स. नाउ इफ यू सी दिस 5 ऑप्शंस, आपको देख के पता नहीं चलेगा कि यही ऑप्शन सही है गलत है, एक्सेप्ट फर्स्ट 2. ओके, the last 3 is confusing. Okay, so in these last 3, if I give you the answer, 4 and 5 are the incorrect one. ये 4 and 5 गलत है. तो मिशन फॉर द कॉटन प्रोडक्टिविटी इज द राइट ऑप्शन. ठीक है? नाउ if you have not read these 9 programs, so definitely you will find trouble in the third, because first is it has become very popular, Makhana board. Second, national mission on the high yielding seeds. Again, by just kind of smart guess, you can mark it correct, because yes, definitely it's a mission project and high yielding seeds very important for the country right now. Similarly, अगर रहता है national mission for the oil seeds something, तो उसमें भी हम मार्क सही करते. So actually these 9 programs are confusing. So whenever there is any organization which have 9 countries, okay, there are 4 basic principles or 4 pillars, you have to learn that. Less than 10 you have to learn. अब किसी कंट्री का लाइक 20 मेंबर्स हैं या किसी को, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, जस्ट यू हैव टू सी वेदर इंडिया इज ए पार्ट और नॉट. तो यहाँ पे 9 है तो डेफिनेटली यू हैव टू लर्न. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है? इसी तरीके से आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एवरी क्वेश्चन, बट अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है इजराइल एंड लेबनान मैप आपके इस एग्जाम के लिए. सो व्हाट आई हैव गिव यू, आई हैव आस्क्ड यू द वेरी बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इजराइल एंड लेबनान which countries border. Now if you don't know this, Israel और Lebanon को कौन border करता है, then I feel you are at like kind of, don't tell me that you are not revised, that's why you're not able to recall. अगर आप लेबनान और इजराइल को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे, इट्स काइंड ऑफ, आई थिंक सम अदर प्रॉब्लम इज देयर. योर अप्रोच इज वेरी रॉन्ग. आप बस मेहनत कर रहे हो विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी रिविजन. ठीक है? So this is a first basic you have to solve. Then I have given you 2 different maps. These maps are the regions inside this Lebanon where the strikes were going on, and it was in news also, these regions. तो ये आप regions देखोगे,
दिस आपको कुछ यहाँ पे असाइनमेंट्स नहीं करना है, बट आपको एक बस ग्लांस लेना है, ठीक है. देन अनदर मैप आई गेव यू. इन दिस यू हैव टू लर्न द ब्लू लाइन, यू हैव टू द लिटानी रिवर एंड काइंड ऑफ ऑल दिस प्लेसेस, बॉर्डर प्लेसेस. एक बार देख लो आप, ठीक है. दिस इज व्हाट. Now again, similarly, again if you see the third topic I gave you, the role of governor in the passage of bills in the state. ये कितना इंपॉर्टेंट है. अभी आप देख लो सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली पेंडिंग है रिगार्डिंग दिस आर्टिकल. इट्स 200, आर्टिकल नंबर 200 फ्रॉम द पॉलिटी. यू सी द प्रोसेस ऑफ पासिंग बिल. ओके, क्या क्यों इतने कॉम्प्लिकेटेड है? बिकॉज गवर्नर हैज पावर टू सेंड द बिल फॉर रिकंसिडरेशन. ये टू प्रेसिडेंट, ये इसको कॉम्प्लिकेट बना देता है. जब गवर्नर प्रेसिडेंट के पास बिल भेज रहा है ना, दिस इज व्हाट मेक्स दिस प्रोसेस आर्टिकल 200 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम. बिकॉज कॉम्प्लेक्स चीजें आ गई है ना. वो प्रेसिडेंट को भेज रहा है, प्रेसिडेंट वापस भेज रहे हैं, फिर वापस स्टेट भेज रहा है. तो कितनी बार प्रेसिडेंट भेज सकता है? नाउ व्हेनेवर द बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, तो गवर्नर का रोल रह जाएगा या खत्म हो जाएगा? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हिच अराइजेस, है ना. आई विल जस्ट डिस्कस वन. ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विच आई आस्क्ड यू इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. राइट नाउ इफ यू सी द थर्ड स्टेटमेंट, व्हाट इट सेज, व्हेन द बिल इज सेंट बाय द गवर्नर फॉर द रिकंसिडरेशन, देयर इज नो टाइम पीरियड मेंशन्ड फॉर द हाउसेस टू रिकंसिडर. क्लियर? बट व्हेन द बिल इज सेंट बाय द प्रेसिडेंट, मतलब ये कब आएगा? व्हेन गवर्नर सेंड द बिल टू प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन. So when the president sent this bill reconsideration to back to the states, then the period of 6 months is there where houses have to reply. ठीक है. Now if you see in the article what it says, in case of the governor sending the bill to the state, first is governor sending the bill. ठीक है. Now what it says, that house or houses shall reconsider the bill accordingly. No time is mentioned. No time is mentioned. But when it says that for the president part, जब प्रेसिडेंट के पास बिल चला जाता है, so when a bill is so returned, the house or houses shall consider it accordingly within, ये वर्ड देखो, within a period of 6 months, ये यहां पे ऐड है. ये गवर्नर में ऐड नहीं है. इट्स अकॉर्डिंगली के बाद देखो ऐड नहीं है, बट यहां पे अकॉर्डिंगली के बाद द थिंग्स हैव एडेड. ठीक है. तो ये लर्न कर जाओगे ना, जिस दिन ये सीख जाओगे ना, आपको प्रीलिम्स इट वोंट बिकम इजी. पॉलिटी सुनने में आसान लगता है, इजी लगता है, पर एक्चुअली में इतना मुश्किल नहीं होता है. लाइक अगर इसको मुश्किल बनाना चाहें तो ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है. पर ये इजी इसलिए हो जाता है कि ठीक है, अब आप जो भी बुक पढ़ते हो, सपोज लक्ष्मीकांत पढ़ाई करते हो, ठीक है ना, लक्ष्मीकांत इतना डिटेल्ड में पहले नहीं होता था. इफ यू सी द प्रीवियस एडिशंस, इतने डिटेल्स में नहीं होते थे, है ना. जैसे जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछा, फॉर एग्जांपल इफ यू सी दैट जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, 2019 में आई थिंक दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन द यूपीएससी प्रीलिम्स. यूपीएससी ने द नेक्स्ट ईयर द एडिशन हैज मेंशन्ड दिस पूरा एंटायर एक्ट इन द बुक. तो लक्ष्मीकांत कीप्स ऑन चेंजिंग द बुक. अभी जो फ्रेशर है आपको लगता होगा एवरीथिंग इज इन लक्ष्मीकांत, बट इट डजंट वर्क लाइक दिस. नेक्स्ट ईयर जब पेपर टफ आएगा पॉलिटी का एंड वेन न्यू टॉपिक्स कम्स अपीयर, तो उन टॉपिक्स को नेक्स्ट एडिशन में ऐड कर दिया जाएगा. तो नए बच्चों को लगेगा एवरीथिंग इज कवर्ड इन लक्ष्मीकांत. राइट. सो दैट्स वाई फॉर द फ्रेशर ऑलवेज से लक्ष्मीकांत के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बुक भी रख के पढ़ना चाहिए. ओके. अब इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो आप एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ोगे. राइट. सो चलो, दिस इज फॉर द टुडे. अभी तो चलो 3 मंथ्स बाकी है, एग्जाम दीजिए एंड विल सी. अभी फिलहाल आपको लर्न करना है ये 3 महीने 100 डेज में अगर आप इन टॉपिक्स को लर्न कर जाओगे बहुत अच्छे से, या इन छोटी छोटी चीज़ों को समझ जाओगे अच्छे से, तो आपका बहुत स्ट्रांग बन जाएगा एग्जाम के टाइम पे. बहुत पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं एंड बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है. राइट. सो यू ऑल्सो वर्क विथ इंटीग्रिटी. आप अच्छे से काम कीजिए, 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा. चलिए.